आज का हमारा लेक्चर है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और this is the topic is entirely different from the topics we have studied before, even in the quantum mechanics 1 or the quantum mechanics 2. And this is the topic from chapter number 9, time dependent perturbation theory. और इस chapter में सबसे I mean this chapter started with the simple introduction of the time independent perturbation theory और उसके बाद फिर time dependent perturbation theory को इससे correlate किया गया है. Previously we have learned about the time independent Hamiltonian or generally speaking we call the quantum statistics. और quantum statistics इसलिए कहा जा रहा है कि अब तक हमने जितनी भी हैमिल्टोनियन इक्वेशन लिखा है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा था और इसी वजह से जो हमें इसकी वजह से इसका जो सॉल्यूशन हासिल हुआ उसको हमने स्टेशनरी स्टेट्स कहा था. इनफैक्ट जो आइगन स्टेट था उसमें टाइम डिपेंडेंसी तो मौजूद थी, लेकिन जब आप उसका स्क्वायर करते थे in order to find the probability of the eigenstate, तो फिर वो जो probability है वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं रहती थी, इसलिए कि जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट था एक्सपोनेंशियल वाला वो चूंकि कॉम्प्लेक्स था, जब आप उसका स्क्वायर करते थे तो वो फिर एक्सपोनेंशियल टर्म खत्म हो जाती थी और इसीलिए हम उसको स्टेशनरी स्टेट का नाम देते थे. तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाइम डिपेंडेंट का जिक्र नहीं करते, इसी तरह से मैग्नेटोस्टैटिक्स में आप टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड की बात करते हैं. लिहाजा जब आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसकी वजह से हासिल होने वाले सॉल्यूशंस को क्वांटम स्टैटिस्टिक का नाम भी दे सकते हैं. तो मैं इस टॉपिक को पिछले तमाम टॉपिक से डिफरेंट इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कि हम अब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस को कंसीडर करने जा रहे हैं और जब हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके नतीजे में जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो यकीनी तौर पर स्टेशनरी स्टेट को कॉरस्पॉन्ड नहीं करेगा. सो this approximation method where Hamiltonian explicitly depends on time we known as a quantum dynamics. Therefore, I mean, these two quantum mechanical topics are entirely different to each other. In quantum statistics, we deal with the time-independent states, and in the quantum dynamics, we deal with the time-dependent eigenstates. Following few processes are given below where Hamiltonian depends on time. For example, atomic transition, जिससे आप वाकिफ हैं. इलेक्ट्रॉन किसी स्टेट में है, जब आप उसको एनर्जी देंगे तो वो फिर जाहिर है किसी हायर स्टेट में चला जाएगा. इसी तरह से कि वो हायर स्टेट में है तो फिर just by emitting fixed amount of energy that can move from higher energy state to the lower energy state. तो इसे atomic transition कहा जाता है. So in fact ये जो transition है this is because of the external energy. तो इसीलिए हम इसको perturbation का नाम दे रहे हैं. लेकिन यहाँ पर जहन में रहे कि ये जो perturbation है that perturbation explicitly depends on time और उसे हम अभी निकालने की कोशिश भी करेंगे. The second process could be a decay process, a nuclear decaying process, जिससे आप वाकिफ हैं. Third could be a magnetic resonance. For example, if you place any atoms or molecules in time-dependent magnetic field, तो उस time-dependent magnetic field की वजह से भी atoms या molecule के अंदर transition होती हैं, जिसे हम magnetic resonance का नाम देते हैं. So whenever we deal with the transition of electron from one state to the other state could be higher or could be lower. In either case,
we call it the time-dependent perturbation case. So, in order to understand this time-dependent perturbation theory, consider a process we call absorption or radiation of atom, described by the following two Hamiltonian. For example, जैसे कि मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है and this receive energy from the outside world, so therefore this electron moves to the higher state. और इसी तरह से इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी है कि वो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा by just emitting this energy. So in this case we deal with two Hamiltonian. The first is the time independent Hamiltonian, जिसको हम H naught कहते हैं, जिससे आप वाकिफ हैं, and we also call this is in the internal Hamiltonian of the system. And of course H naught का जो solution होगा वो time independent probability देगा. इसी तरह से दूसरी possibility यहाँ पर ये होगी कि we also includes another Hamiltonian. This is called the time dependent Hamiltonian, जिसको मैं H prime का नाम दे रहा हूँ. But keep in mind that H prime must be smaller compared to H naught. और ये condition तो हमने इससे पहले भी देखा था कि जो perturbation है that must be smaller in size as compared to the time independent Hamiltonian. So if all of this is true, then the total Hamiltonian of the system can be a linear combination of two Hamiltonian. So the first is the time independent Hamiltonian, and the second is time dependent Hamiltonian, and lambda is gives you the strength of the corresponding Hamiltonian. Okay, so now let's do some mathematical formalism and drive some equations that how could we determine the time-dependent eigenstates and time-dependent probability. तो अब इसमें वैसे तो आप जानते हैं कि किसी एटम में नंबर ऑफ स्टेट्स की तादाद तो इनफाइनाइट होती है, लेकिन इससे पहले कि हम किसी रियल सिस्टम की बात करें, let's consider a very simple system जिसको मैं सिर्फ 2 level system कह रहा हूँ ताकि मैथमेटिक्स भी हमारी जरा सिंपल रहे और हम फिजिक्स सीख सकें. So once we have a mathematical relation, तो उसके बाद फिर हम किसी एडवांस स्टेज की तरफ भी जा सकते हैं. To begin with, let's suppose that there are two states of the unperturbed system, जिसे मैं psi A और psi B का नाम दे रहा हूँ. So they are eigenstates of unperturbed Hamiltonian H naught in fact. और चूंकि ये Hamiltonian H naught time independent है, तो उस केस में आप ये जानते हैं कि Hamiltonian equations gives you a corresponding eigen energy EA for the case of psi A and EB for the case of psi B. And if you have number of states in a single system, then all of the state must follow the orthogonal conditions. तो फिर मैं इसको in two state system को इस तरह से भी लिख सकता हूँ. And this Dirac notations must be equal to 0 when we have different indices and we have a same indices, then this must be equal to 1, which is called a normalization condition. So एक तो condition ये होती है और दूसरी condition ये होती है कि हम जितनी भी states हैं उनको linear combination के form में लिख सकते हैं. तो हमारे यहाँ पर चूंकि सिर्फ 2 states हैं, तो उन दोनों states को मैं linear combination के form में इस तरह से लिख सकता हूँ. And psi of 0 का मतलब यहाँ पे ये है कि we measure at time t0. ये ज़ाहिर स्पेस का फंक्शन तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ टाइम का भी फंक्शन है.
तो स्पेस की रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर नहीं दिखाया गया, इसलिए कि हम सिर्फ टाइम की डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो इस जीरो का मतलब है this linear combination at time t is equals to 0. The states psi a and psi b might be position space wave function or spinors or something more exotic. It doesn't matter. It is the time dependent that concerned us here. So when I write psi of t, I simply mean the state of the system at time t. In the absence of any perturbation, each component evolves with its characteristics exponential factor, and this can be written as in terms of complete equations. Psi of t is equals to Ca psi a exponential minus iota Ea t by h cut plus Cb psi b exponential power minus iota Eb t divided by h cut. So in this case, Ca and Cb are the coefficients, और इस केस में ये जो coefficients हैं ये time dependent नहीं है, इसलिए कि हम ने ये जो equations हासिल की है वो time independent Schrodinger equations से हासिल की है। तो ये जो psi of t है ये इसलिए है कि यहाँ पर ये exponential का function आ रहा है जो कि time dependent। Therefore, in order to find the probability of individual states, we need to find the square of Ca or square of Cb. We say that Ca square is the probability that the particle is in state psi A. And similarly, we can also find the probability of finding a particle in state B by just taking Cb square, by which we really mean the probability that a measurement of the energy would yield the value Ea. Normalization of psi requires, of course, that Ca square plus Cb square is equals to 1. और ये आप जानते हैं कि individual probability का जो sum है वो equal to 1 के बराबर होता है. Okay. Right. So these are the few example that we have done before. और इस जगह पर हमने किसी भी जगह पे अभी कोई time dependent perturbation की बात नहीं की है. Now let's move on to the perturb system. Suppose we turn on time dependent perturbation H prime. Since psi A and psi B constitutes a complete set, the wave function psi t can still be expressed as a linear combination of them. The only difference is that psi A and psi B are now a function of time. तो बिल्कुल पिछली वाली इक्वेशन की तरह से यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, यानी अगर आपके पास अब हैमिल्टोनियन टाइम डिपेंडेंट है तो फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा तो उस सॉल्यूशन को आप इस तरह लिखेंगे. नाउ वी हैव टू टाइम डिपेंडेंट टर्म्स. एक तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म तो मौजूद ही है जो कि पहले भी होती रही है, लेकिन अब आपके पास एक और टर्म time dependent आ गई है. These are the coefficient of this wave function Ca and Cb, and the whole problem is to determine Ca Cb as a function of time. So let's begin how to determine these coefficients. For example, the particle started out in the state psi A, so that Ca0 can be written as 1 and Cb0 is equals to 0. तो इन कॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा कि पार्टिकल इस वक्त ग्राउंड स्टेट में, and at some later time t1 we find that Ca t1 0 and Cb t1 1. और जब आपने टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन हैमिल्टोनियन अप्लाई कर दिया तो फिर अब आपके पास कॉम्बिनेशन ये है.
CAT1 0 और CBT1 is equals to 1. इसका मतलब ये हुआ कि now the particle moves from state A to state B by just applying the time-dependent perturbation. Therefore, we shall report that the system underwent a transition from psi A to psi B. Right? We solve for CAT and CBT by demanding that psi satisfy the time-dependent Schrodinger equations. So now I'm going to find the value of these two coefficients. In fact, so here is the Schrodinger equations. In fact, time-dependent Schrodinger equations. But keep in mind, this H now is a combination of time-independent perturbation Hamiltonian and time-dependent perturbation Hamiltonian. तो इस H नॉट से तो आप वाकिफ हैं, जो नई चीज है वो ये H प्राइम है जो कि टाइम डिपेंडेंट है। तो अब मैं इस इक्वेशन में एक तो ये H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये वाली, और दूसरी ये जो साई है जो हमने पिछली स्लाइड में लिखा था, मैं एक दफा फिर दिखाऊं आपको, ये साई है। तो इस फंक्शन को भी मैं उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, ऑफ कोर्स ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल हैव H नॉट प्लस H प्राइम, और साई को यहाँ पे लिखा गया है इज इक्वल्स टू आयोटा H कट, राइट, पार्शियल ओवर पार्शियल T, और साई की वैल्यू भी यहाँ पर लिख दी गई है जो कि आपने लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा है। ओके सर, नाउ इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, तो ये दो ब्रैकेट्स हैं और इसमें भी दो टर्म्स हैं, इसमें भी दो टर्म्स हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव 4 टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशंस, और राइट साइड पे अगर आप ये देखें तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है ऑन द होल ब्रैकेट। सो वी हैव 2 टाइम डिपेंडेंट टर्म on each term. For example, CAT ये भी टाइम डिपेंडेंट है, और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आयोटा EAT by H कट ये भी टाइम डिपेंडेंट है, जबकि ये जो psi A है, this is the space dependent term and you can take it out from this partial derivative. इसी तरह से सेकेंड टर्म के साथ भी यही सूरत हाल है। तो यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का, तो 2 टर्म्स यहाँ पे मिलेंगी और 2 टर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो नई इक्वेशन जो बनेगी वो इस तरह से मिलेगी, यानी लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, और राइट साइड के ऊपर जब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे तो इफ यू लुक एट हियर, पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया गया है, तो सी ए का जो डेरिवेटिव है उसको सी ए डॉट लिखा गया है आसानी के लिए, psi a as it is because it depends on a space function, and इस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख दिया गया। उसके बाद फिर आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज psi a, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, तो उसका जो आर्गुमेंट है उसको आप एज इट इज लिखेंगे, और इनफैक्ट आर्गुमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो इसके साथ जो t है that's going to be 1, और सारे का सारा जो आर्गुमेंट है वो मैं यहाँ पर लिख लूंगा, and the whole exponential can be written as it is. इसी तरह से ये जो 2 टर्म्स हैं ये भी आ जाएंगे। ओके, सो अब यहाँ पर आयोटा एच कट है, इसको आप इनकॉर्पोरेट कर दें इस ब्रैकेट में, और इसके अलावा एक काम आपने और करना है, because you already seen before that जो time independent Hamiltonian है H naught, तो जब वो psi a पे अप्लाई होगा that will give you EA, इसी तरह से इस इक्वेशन में आपको EB मिलेगा, तो इस इक्वेशन को भी आप पिछली इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, तो उसके नतीजे में यहाँ पे आपको EA मिलेगा, सिमिलरली EB,
और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये तो एज इट इज लिखी जाएंगी, और यहाँ पर आयोटा एच कट जब आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो यू विल हैव आयोटा एच कट विद द होल टर्म्स। यहाँ पर भी आयोटा एच कट है, यहाँ पर भी, और इस टर्म के साथ भी। So if you look at the second term, iota h cut, and in the bracket we have minus iota. So iota multiplied by iota will be -1, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, and h cut would be cancel out with this h cut, और बिल्कुल यही सूरत हाल इस फोर्थ टर्म के साथ भी होगी। So from this term h cut will be cancel out, और इस फोर्थ टर्म से भी कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 था और एक माइनस इस ब्रैकेट में था, जिसकी वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव। So if you look at the first term and compare with the second term on the right side, so both are exactly equal to each other, therefore we can cancel out. इसी तरह से जो सेकेंड टर्म है सी बी टी ई बी साई बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई बी टी डिवाइडेड बाई एच कट, राइट साइड पे भी आपके पास एग्जैक्टली यही टर्म मौजूद है, so we can also cancel out. So after the cancellation we have a simple equation of the left side would be CAT H prime psi a exponential minus iota EAT divided by h cut plus CBT h prime psi b exponential power minus iota EBT divided by h cut. And the right side can also be written in terms of these two terms. So let me write the whole equation in terms of the Dirac notation. और आप ये जानते हैं कि Dirac notations जब आप लिखते हैं तो फिर सिर्फ आइगन स्टेट को ही लिखा जाता है, कोफिशिएंट्स चूंकि आइगन स्टेट नहीं है तो जाहिर है इसको डिराक नोटेशन के बाहर लिखा जाएगा। इसी तरह से जो ऑपरेटर है उसको भी आप बाहर लिखेंगे, तो इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ डिराक नोटेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज, राइट। And now as we already mentioned before that we need to find this psi dot A and psi dot B. तो ये मालूम करने के लिए जो ट्रिक्स हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं कि हमें यहाँ से इनर प्रोडक्ट लेना होगा in order to get this psi A dot for example in the first step. तो मैं इस psi A के साथ इसका अगर इनर प्रोडक्ट ले लूँ, इनफैक्ट psi A of bra वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट ले लूँ तो फिर मुझे psi A dot मिल सकता है। Take an inner product of psi A bra vector on both sides, तो आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। इस केस में इनर प्रोडक्ट लूंगा ब्रा वेक्टर के साथ तो जाहिर है ये H प्राइम सैंडविच होगा, and that can be written as the center of this Dirac notation. लेकिन आप ये जानते हैं कि because of the harmicity of the Hamiltonian operators, either you can write this H prime into the cat vector or into the bra vector. तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको इसी तरह लिखें, आप किसी एक वेक्टर के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, सॉरी राइट साइड के ऊपर फर्स्ट टर्म और राइट साइड पे सेकंड टर्म। So if you look at for example this psi A Dirac notations, because of the normalization conditions this is going to be 1, और सेकंड टर्म को अगर और से देखें राइट साइड पे तो ये हो जाएगा 0। Therefore we have simple equations CAT psi A H prime psi A exponential power minus iota EAT divided by H cut। इसी तरह से सेकंड टर्म
और राइट साइड पे आपको सिर्फ ये मिल जाएगा. Still, as we told before that we need to find CA dot. तो मुझे एक तो आयोटा एच कट भी यहाँ से हटाना होगा और ये एक्सपोनेंशियल भी यहाँ से रिमूव करना होगा. तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 1 over आयोटा एच कट एक्सपोनेंशियल पावर प्लस आयोटा ई ए टी बाई एच कट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे साई ए डॉट मिल सकता है. सो इस इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है और इसके साथ साथ एक काम हम और कर रहे हैं. हम ये जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट द मैट्रिक्स एलिमेंट और इस मैट्रिक्स एलिमेंट को आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ यू हैव अ मैट्रिक्स एलिमेंट साई आई एच प्राइम साई जे तो उसको आप प्राइम लिख सकते हैं. तो एक तो ये तब्दीली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ और दूसरा मैं इन कोफिशिएंट्स को भी यहाँ से हटाना चाहता हूँ. सो जब आप कोफिशिएंट्स को हटाएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिल जाएगा माइनस आयोटा बाई एच कट सी ए टी एच ए प्राइम माइनस आयोटा बाई एच कट सी बी एच ए बी प्राइम और एक्सपोनेंशियल पावर आ जाएगी माइनस ई बी माइनस ई ए टी बाई एच कट इज इक्वल्स टू साई ए डॉट टी और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ. So finally, we get the equation of CA dot. अब इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाऊँ, we can also use the same procedure to get the CB dot. और उसी तरह से आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास CB डॉट भी मिल जाएगा. तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गई. सो इक्वेशन 9.10 and 9.11 determines CAT and CBT. Taken together, they are completely equivalent to the time-dependent Schrodinger equation for a two-level system. Typically, the diagonal matrix elements of H prime vanish. प्रॉब्लम 9.4 जब हम करेंगे तो ये मजीद क्लियरिटी के साथ आएंगी, लेकिन हम ये डीजेनरेट स्टेट के अंदर भी हम देख चुके हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं एच प्राइम के वो अमूमी तौर से जीरो होते हैं. और आप ये जानते हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये एच प्राइम ए एच प्राइम बी बी ये होते हैं और एच प्राइम ए बी या एच प्राइम बी ए जो है ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं. तो अब अगर ये जीरो होते हैं तो फिर हम अपनी इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो सी ए डॉट के अंदर भी जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो हो जाएगी और सी बी डॉट के अंदर भी ये फर्स्ट टर्म जीरो के बराबर हो जाएगी. तो आपके पास फर्दर सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये होगी. इसको और आसानी के लिए मैं in terms of frequency इस तरह लिख सकता हूँ कि omega naught is equals to EB minus EA divided by H cut. And keep in mind this E naught is the transition frequency because दो levels हैं, एक energy EA है, दूसरी state की energy EB है, so the difference of energy is EB minus EA. Keep in mind that EB is higher energy state and EA is lower state, so that the difference of this energy must be a positive. So इनकी जो corresponding frequency होगी उसको आप omega naught कह सकते हैं, and this also greater than or equal to 0. तो इस equation को in terms of omega naught लिखना हो तो फिर आप लिख सकते हैं EB minus EA divided by H cut. इसकी जगह पे आप ओमेगा रख दीजिए तो आपकी ये इक्वेशन और ज्यादा सिंपल हो जाएगी. सो दीज आर द टू कोफिशिएंट्स ऑफ द टू state system, CA dot, CB dot. Okay, now let's find the perturbation or the order of perturbation, in fact.
So in order to find different order of perturbation, we use the following equation number 13 with the following steps. Equation number 13, ये जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपके सामने लिखी थी, ये वाली. So these are the equation number 13, CA dot CB dot. So करना इसमें ये होगा कि यहाँ से आप डिफरेंट ऑर्डर ऑफ टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन निकाल सकते हैं. लेकिन आपको करना ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन निकाल रहे हैं, तो फिर आप राइट साइड पे ये जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे जीरोथ ऑर्डर सब्स्टिट्यूट करेंगे. और अगर आप यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो राइट साइड पर इन कोफिशिएंट में फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे. इसी तरह से जितनी हायर ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन निकालना है वो निकाला जा सकता है. लेकिन फर्स्ट कर लीजिए कि आपके पास अगर यहाँ पे आप nth ऑर्डर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल हैव n+1 ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन. फॉर मोर क्लियरिटी मैं आपके सामने मजीद डिटेल लिख रहा हूँ. यानी जो इनिशियल कंडीशंस हैं दैट कैन बी रिटन एज CA01 CB00 के बराबर है. सो इनिशियल कंडीशन से मुराद ये है इनिशियली पार्टिकल स्टे एट द ग्राउंड स्टेट जिसको मैं CA कह रहा हूँ, तो जाहिर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी, और CB में चूंकि पार्टिकल अभी नहीं गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होगी. इनफैक्ट ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है. Okay, so if there were no perturbation at all, they would stay this way forever. तो इसी इनिशियल कंडीशन को हम जीरोथ ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं. पार्टिकल अगर ग्राउंड स्टेट में है तो जीरो ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन उसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि CA 0 टाइम T is equals to 1, CB 0 टाइम T is equals to 0. Okay, so to calculate the first order approximation, we insert these value on the right side of equation 9.13. Equation 13 ये है. अभी मैंने आपको बताया था कि यानी आप अगर फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको जीरोथ ऑर्डर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो कि आपको मालूम होता है इनिशियल कंडीशंस हैं बेसिकली. तो जीरोथ ऑर्डर अभी मैंने कहा कि CA 1 के बराबर है और CB 0 के बराबर है. तो ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और इनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन हम निकाल सकेंगे. सो द फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन CA डॉट को मैं CA डॉट को मैं DCA डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ. इनफैक्ट चूंकि CB का जो जीरोथ ऑर्डर है वो 0 के बराबर है, अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, तो जाहिर है जब ये 0 है तो ये राइट साइड पूरी 0 के बराबर हो जाएगी. और जब आप इसको वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल हैव CA 1 ऑफ T इज इक्वल्स टू 1. CA 1 का मतलब है कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन. इसी तरह से अगर मैं सेकेंड टर्म को टेकअप करूं तो इसको लिखा जा सकता है कि DCB डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा h कट HBA प्राइम एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा नॉट T. CA की जगह पर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है, यहाँ पर लिखा नहीं है, बट कीप इन माइंड CA इज इक्वल्स टू 1. तो इसको जब आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे और इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो यू कैन राइट दिस फॉर्म. अब अगर हमें ये हैमिल्टोनियन पता हो तो फिर जाहिर है हम इस इंटीग्रल को सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट आई एम इंटरेस्टेड टू डेवलप द इक्वेशंस, तो मैं अभी सिर्फ आपके सामने इन इक्वेशंस को रख रहा हूँ. अच्छा, अब अगर सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जाएं तो अब अगर मैं सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो मुझे राइट साइड पर फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो कि ये है, यानी CA
का जो फर्स्ट ऑर्डर है ये 1 है और CB का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो ये इंटीग्रल है. So second order approximation के लिए once again we will use the same equation number 13. Now we insert the following expression on the right to obtain the second order approximation. ये दो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है, इसको मैं यहाँ पर राइट साइड पर इंटर करूंगा and that will give you the second order approximation from these equations. तो सबसे पहले मैं CA डॉट को टेकअप कर रहा हूँ. That can be written as DCA divided by T और ये इसके बराबर हो जाएगा. और इसको जब आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो यू कैन राइट लाइक दिस फॉर एग्जांपल. अच्छा, यहाँ पे ये जो 1 मैंने लिखा है दिस मीन कम्स फ्रॉम द इनिशियल कंडीशंस और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं टाइम t0 पर ये तमाम इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा तो जाहिर है ये 0 के बराबर हो जाएगा. तो 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है कि CA जो है इसको 1 के बराबर होना चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 रखा है. इसी तरह से CB निकालना चाहें तो CB भी निकाल सकते हैं और उसके लिए आपको CA का फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई करना पड़ेगा and that can be written as minus iota over h cut integral 0 to t hba prime t dot t prime exponential iota omega t prime dt. So lucky enough this CB का जो सेकेंड ऑर्डर है वो exactly बराबर है CB के फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन के. So this is how we have developed a different order of approximation of the time dependent perturbation theory. अब इसे हमें इस्तेमाल कैसे करना है ये बात अभी यकीनी तौर पे बाकी है. So here I'll stop the lecture and hopefully in the next lecture I'll start onward from this topic.